Alright, G, next one says struggling with casual racism as a Gulf Pakistani in Canada. Salam Junaid bhai, hope you're well. I'm writing to you because I'm at a point where I don't know how to process the subtle but constant racism I have faced. I was born and raised in the Gulf, and anyone who has lived there knows how Pakistanis are treated. Anyone who isn't Arab or white are seen as cheap labor, poor, uneducated, and no matter how much we study or how fluent we are in English, we still get looked down upon. Growing up there, I had to tolerate racist comments, jokes, and being treated as less just because I was a Pakistani. Now I've moved to Canada, and honestly, I thought things would change, but the racism has just taken a different shape. At my workplace, I work in a fast food chain, and people keep casually calling me Indian. I've corrected them multiple times that I'm from Pakistan, but they don't care. For them, South Asia is all the same, just win one big India. It's disrespectful and it hurts because our identity, history, and culture are erased in a single word. I don't think it's erased. It's literally the same culture. And ये चीज़ के वो अब if you're expecting Goras to know कि each and every section and subsection of your caste system और फिर वो इंडिया पाकिस्तान डिफरेंशिएट करेंगे फिर हिंदू मुस्लिम फिर उसमें अलग सुन्नी शिया मतलब लाइक दे नॉट गोना गो एट दैट लेंथ उनके लिए आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में साउथ एशिया इज़ वन ये पाकिस्तानीज अगर समझते हैं कि इंडियन हेट करने से या ऑनलाइन जो इंडियन हेट हो रहा है वो सिर्फ इंडियन तक रहेगा उनकी नज़र में हम सब इंडियन है भाई हम सब इंडियन है इफ व्हाट डू यू थिंक इफ आई स्टेप आउट टोरंटो में या फिर यहीं पे यूके में कहीं और अगर कोई रेसिज्म वाला सिचुएशन चल रही है तो मुझे ये देख के छोड़ देंगे नहीं ओ ही लुक्स काइंड ऑफ लाइक फ्रॉम कराची सो लाइक नहीं ये बॉम्बे वाला नहीं उनके लिए मैं वही हूँ भाई मुझे भी पड़ेंगे डंडे सो यस ये सोचना कि वो ये एक्सपेक्ट करना कि दे वुड नो एवरी नुक एंड क्रैनी अच्छा फिर इंडिया में भी अगर कोई कोई बोले कि नहीं जी मुझे नॉर्थ इंडियन क्यों बोला मैं तो साउथ इतना कोई नहीं जानेगा ना ही वो क्या आप इतनी फिक्र करते हैं कि अगर आप किसी को कैनेडियन कह रहे हैं कि तो उसकी रूट्स जो हैं वो डेनिश हैं या नॉर्वेजियन हैं या वो आयरिश डिसेंट का है या वो आप नहीं जाते ना आपकी नज़र में गोरा गोरा है तो उनकी नज़र में ब्राउन ब्राउन है आप सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड हो आप कहीं से भी हो दे डोंट केयर सो आप जितना भी करेक्ट कर लें वो for them it's just South Asia. I tried to build friendship with Arabs here as I had many mutuals from my time in the Gulf, but I often get referred to as chicken tikka masala by them. To them it's a joke, but to me it's humiliating. It reduces me, my culture, and my entire identity to just a stereotype. And it's not just limited to friends and work. One night around 2 a.m., I crossed the road where there wasn't a single car in sight. A harmless jaywalk. Out of nowhere, a Greek kebab shop owner shouted at me, "You bloody Indians." I'll admit, maybe I shouldn't have jaywalked, but it was late. No car, cyclist, or pedestrian was on the road, and no one was harmed. Still, the first instinct wasn't to call me out for my jaywalking. It was to reduce me to bloody Indian. I feel like I live on water thin ice. Even if I sneeze in public, there's a chance someone will hurl a racist slur my way. I see a surge of hyper separation from my individual self as if nothing I do matters because at the end of the day, I'll always be boxed into their stereotype. I know some people will dismiss this as me being too sensitive, but it builds up. These small things don't stay small when they repeat over and over again. They chip away at your dignity. I'm not ashamed of being Pakistani, but I'm tired of constantly being disrespected for it. I just wanted to share this with you because you often speak about these issues openly. Maybe others like me will relate because I'm sure I'm not the only one going through this. No, of course not. In fact, मेरे साथ भी एक racist, I won't call it racist, but yeah, maybe I can. I'll leave it up to you guys. I was I told you last episode that I was supposed to be in Berlin, but I had to fly to Hamburg because Emirates Berlin नहीं जाती. So Emirates Berlin क्यों नहीं जाती? Because हर airline को not true about every country, but at least in Germany, let's say, कि उनको सिर्फ 5 स्टेशन अलाउ होते हैं कि आप सिर्फ 5 सिटीज क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि भैया हमारे मुल्क उतरो और हमारी सवारी पे चढ़ो ये सारे फंड बाहर एमिरेट्स और इत्तेहाद और कतर पे क्यों जा रहे हैं तो 5 स्टेशन अलाउ होते हैं तो एमिरेट्स चोज ऑब्वियसली द 4 मोस्ट सॉट आफ्टर तो जाहिर है वो फिर वहाँ जाते हैं डजल्डॉर्फ फ्रैंकफर्ट इधर उधर तो बर्लिन इसलिए मिस आउट हो गया सो मैं हैम्बर्ग गया हैम्बर्ग से मैंने फिर ट्रेन ली अच्छा बिकॉज आई वॉज
carrying with because I'm away for a few weeks out of the house, तो ज़्यादा सामान ज़्यादा है, इक्विपमेंट का अलग होता है, फिर अपनी चीज़ें अलग होती हैं, जूते दिस दैट ये वो। तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया, टॉयशबान डीबी जिसको कहते हैं, एंड आई टुक द फर्स्ट क्लास टिकट। फर्स्ट क्लास का टिकट मैंने क्यों लिया? क्योंकि यार अगर सामान ज़्यादा है ना, इकोनॉमी में चूँ जाना हो, क्योंकि इकोनॉमी में रश भी होगा, सामान रखने की जगह दरवाजे के साथ ही डब्बा, जहाँ से डब्बा शुरू होता है ट्रेन का, उधर ही एक सेक्शन बना होता है। अब इकोनॉमी में चूंकि रश होता है एंड पीपल आर ट्रैवल, समर्स हैं, लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मेरा एक बैग तो आ जाएगा, दूसरे बैग पे कोई चूचा ना करे। तो मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। तो जो टिकट मुझे 22 यूरो का मिल सकता था, मैंने 80 यूरो का फर्स्ट क्लास टिकट लिया। फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलेगी, ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे, बैग रख लूंगा आराम से। और वही हुआ, मैं गया आराम से, अपने बैग्स रखे। इनफैक्ट माइन वर दी ओनली लगेज, बिकॉज बाकी सारे वो बिजनेस क्राउड था जो कि मीटिंग्स के लिए बर्लिन जा रहा था, शाम को शायद उन्होंने वापस ही आना था। लैपटॉप्स, फोन्स पे ईमेल्स हो रही हैं, काम वाम हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वॉज फर्स्ट क्लास, यू कैन एक्सपेक्ट कॉफी एंड क्रोसॉन वगैरह वगैरह। अब मैं वहाँ बैठा हूँ एंड आई वॉज वेटिंग कि कॉफ़ी आएगी तो पीऊँगा मैं। जर्मन आया, उसने सबको कॉफ़ी ऑफर की, उसने मुझे बस एक्नॉलेज किया, हाँ यहाँ कोई बैठा हुआ है, एंड ही जस्ट मूव्ड। ही नेवर इवन सेड, एक होता ना पासिंग में ही बंदा बोल दे कॉफ़ी कॉफ़ी, उसने सबको इंडिविजुअली बोला। और एक बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ। हैमबर्ग से बर्लिन 3.5 घंटे की ट्रेन है, 3-3.5 घंटे की, उसमें वो लगभग 2 से 3 बार आया। और ना सिर्फ वो आया, उसका दूसरा पार्टनर भी आया, बट नॉट वंस दे आस्क्ड मी। एंड माई वाइफ वॉज लाइक, आई वॉज ऑन कॉल विद हर, शी इज लाइक, जाके उनके किचन में जाके शोर मचाओ कि मुझे पूछा क्यों नहीं तुमने, ऐसी की तैसी तुम्हारी। बट लाइक मैं इतना कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, मेरा ठीक है, नहीं नहीं है कॉफ़ी तो नहीं है। सो बट या दिस इज कैजुअल रेसिज्म। मुझे बोला भाई क्या, जो तू इंडियन बैठा है, इन्होंने अब उनके लिए तो मैं, उनको थोड़ी पता मैं टूरिस्ट हूँ, उनको है कि ये कल्चरल इनरिचमेंट करने आया कोई डॉक्टर इंजीनियर बन के, और यहाँ पे आके हमारी औरतों को रेप करेगा, क्राइम करेगा, बस किसी तरह फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है फॉर सम रीजन वगैरह वगैरह। सो या दैट्स हाउ यू ट्रीट इट। अब देखो इसको, इसमें ना आप इसको इस तरह बिठा लें कि हमारा एक घर है, हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बू की नहीं बनती और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और घर का माहौल है बहुत ख़राब। तो जिन घरों के माहौल बहुत ख़राब होते हैं, तो रिश्तेदार कोशिश करते हैं यार बच्चे ना उस माहौल में और ख़राब हो जाएंगे, तो बच्चे कुछ दिन चले जाते हैं नानी के घर। लेकिन जब नानी के घर जाते हैं तो फिर मामी मुंह बनाती है, नानी शायद मुंह ना बनाए, बट मामी बोलती है क्या है भाई, अपने भी बच्चे हैं घर में, पहले इतना रश है और बच्चे आ गए। फिर आप चले जाते हो चाचा के घर, फिर चाचा के घर भी आप ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाते, फिर ताया के घर, फिर खाला खालू, ये आप चलते रहते हो। तो पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे घर का माहौल ख़राब है पाकिस्तान का, हमारे बड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बम फटते रहते हैं, और हमें नुकसान हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ को या हमें फिज़िकली बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस डर से हम चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए मामू के घर सऊदी। सऊदी भी फिर बोलता है कि हाँ चलो ठीक है काम करो, फिर वो बोलता है यार क्या आ गए ये लोग, फिर हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भी राइटिंग शुरू कर देते हैं, फिर हम चले जाते हैं साउथ कोरिया, जापान में भी शुरू हो गया वैसे बाय द वे, फिर कनाडा, अमेरिका, यही तो हर जगह हमें, क्योंकि जब आपकी घर में इज्जत नहीं होती ना, आपकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। जिन लोगों की घर में इज्जत होती है उनकी हर जगह इज्जत होती है, ये बात याद रखिएगा। तो उनको पता है कि इजीली डिस्पोजेबल है, ये कॉकरोच की तरह पैदा होते हैं। ठीक, ये बात मुझे एक अंग्रेज ने की थी जो कि वॉर वेटरन था डैलस में, मेरी ही वाज माय उबर, एंड आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक अ सेल्फ हेटिंग ब्राउन मैन, और मैं, बिकॉज ही वाज अ वॉर वेटरन, तो मैं उससे मंजन निकलवा रहा था, एंड आई वाज लाइक हाउ मच एक्शन डिड यू सी, और मैं एक्साइटमेंट शो कर रहा था कि अच्छा सही कह रहा, मैं तो मारता था, ये करता था, मैं उससे उगलवा रहा था। एंड ही वाज लाइक स्ट्रेट अप ट्रम्प सपोर्टर, यू नो एंटी एलजीबीटी, मतलब उनको भी गालियां दे रहा है, वो लोगों को भी गालियां दे रहा है, एंड देन लाइक एंड ही वाज लाइक स्ट्रेट अप रेसिस्ट। वो कह रहे थे ये कॉकरोच की तरह पैदा होते हैं, हम इतना बम मारते थे फिर पैदा हो जाते थे। तो कहते यू नीड टू न्यूक दीज प्लेसेस, अफगानिस्तान, इराक, यू नीड टू फकिंग न्यूक दीज प्लेसेस, दे गुड फॉर नथिंग, इस तरह सोचते हैं। तो हम इसी तरह हैं,
ठीक है, सारे इस तरह नहीं सोचते होंगे, बट अब जो ग्लोबल माहौल बन रहा है ना, थैंक्स टू द इंटरनेट इज रियली डिवाइडिंग पीपल, इट वाज सपोज टू यूनाइट अस। अब जितना हम देखते हैं कि इंडियन क्राइम बढ़ रहा है दुनिया भर में, स्कैमर स्कैम कर रहे हैं या टारगेट में जाके चोरियां कर रहे हैं, गुज्जू जो है ना ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं चोरियां कर रहे हैं, होटल में चोरियां कर रहे हैं, लगता है कि सिर्फ इंडियन ही चोरियां कर रहे हैं। या फिर अगर इंग्लैंड में आप देखें, आई एम नॉट डिनाइंग पाकिस्तानीज आर इनटू अ लॉट ऑफ फक्ड अप क्राइम्स यहाँ पे, मगर इंटरनेट देख के लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही क्राइम करें, लेकिन जब आप स्टैट्स निकालते हो तो वो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। आई एम नॉट डिफेंडिंग पाकिस्तानीज एट ऑल, आपको मेरा अच्छी तरह पता है, मैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ भाई। सेम होज फॉर आई वॉज विद माई लवली फ्रेंड्स इन जर्मनी, सो माई डियर फ्रेंड सादिया, शी टोल्ड मी कि द वेव इन जर्मनी इज लाइक कि जितना भी क्राइम हो रहा है इमिग्रेंट्स कर रहे हैं, या 90% क्राइम इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। लेकिन म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने पूरा डेटा एनालाइज किया पिछले 5 साल का या 10 साल का, हर थाने का, तो 90% क्रिमिनल्स तो वाइट जर्मन्स निकले, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता, रिपोर्ट होता भी है तो मीडिया पे सारा हाईलाइट नहीं होता। सो इंटरनेट पे ये जो आप पूरी वेव देख रहे हैं अगेंस्ट ब्राउन पीपल, अगेंस्ट मुस्लिम एंड अगेंस्ट इंडियंस, दोनों साइमल्टेनियसली साथ चल रही हैं। तो it is of course leading to a lot of hate crime, and it's going to turn into a lot of violent racism in the coming days. क्योंकि एल्गोरिदम फिर आपको बार बार वही, अब देखिए ना, मैंने वो एक रील आई थी, गणपति विसर्जन चल रहा है फ्रांस में, ठीक है, तो मैंने अपने इंडियन फ्रेंड को भेजी, क्योंकि वो भी मुझे इस तरह की चीज़ें भेजता रहता है कि देखो मुसलमानों को जहाँ जगह मिलती है जायनमाज लगा देते हैं, तो मैंने भी भेज दी, मैं देखो तुम्हारा भी गणपति विसर्जन हो रहा है हर जगह, ठीक है। अब मैंने चूंकि एक भेजी ना, इंस्टा ने पकड़ लिया, अब वो मुझे मिलान का भी भेज रहा है, वो मुझे लंदन का भी भेज रहा है, वो मुझे जर्मनी का भी, वो हर जगह का इंडियन मसाला मुझे भेज रहा है। तो अगर तो मैं एल्गोरिदम को नहीं समझता हूँ तो मैं तो रायला पूंगा, यार ये देखे थे कि इंडियंस क्या है, हर जगह गंद मचा रहे हैं। इसी तरह जो इंडियन है वो जगह जगह मौलवी देख रहा है कि भाई वो रबीउल अव्वल का जुलूस ह्यूस्टन में भी निकल रहा है, अच्छा बार्सिलोना में भी मातम हो रहा है, आईफिल टावर के साथ भी मातम हो रहा है, उनको वो भेजा जा रहा है कि तुम ये देखो, और वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है उनके संगीज में, यहाँ पे हम अपने भाई लोगों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इंडियंस क्या। अब इससे डिवीजन प्रो मैक्स हो गया। अब हम दोनों का कंटेंट इस तरह एल्गोरिदम जमा करके गोरों को भेज रहा है कि देखो तुम्हारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमने नहीं किया है या हम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे, लेकिन जिस तरह दिखाने लग रहा है कि हर गली के कोने पे ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा भाई। अब एक तो हमारी अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, फिर हमने अपनी इज्जत करवाना चाहिए भी नहीं। आप देखें सोशल बेनिफिट्स के हम कितना मिसयूज करते हैं। शहरों के शहर बैंकरप्ट कर दिए हमने, मुल्क के मुल्क बैंकरप्ट कर दिए, ठीक है ना, 6 बच्चे पैदा करके कोई काम नहीं करना। अब आप देखें लीस्ट एम्प्लॉयबल पीपल आर पाकिस्तानीज इन अ लॉट ऑफ सिटीज इन द यूके। सबसे ज़्यादा बच्चे भी इनके, सबसे ज़्यादा चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स भी इनके, ठीक है, अप टू 60% जो चाइल्ड एट बर्थ डिफेक्ट है पाकिस्तानियों के हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कजन मैरिजेस, राइट। सो नो कंट्रीब्यूशन और लेने में पूरे। सो अब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं जब, तो फिर गोरे को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी कौन है, नॉर्थ इंडियन कौन है, साउथ इंडियन कौन है, इवन श्रीलंकन कौन है। आपको याद थी कितने सिख लोगों को 9/11 के बाद मार दिया गया था अमेरिका में, ये समझ के कि ये मौलवी हैं, क्योंकि उनका भी सर कवर्ड था और दाढ़ी थी। उनको नहीं पता भाई, उनके लिए ब्राउन एक स्पेक्ट, वो जो फैमिली गाय का नहीं, वो एक मीम है, वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे देखता है भाई कलर में कौन सा वाला बैठ रहा है, अच्छा ये इस पे आ रहा है, इस वाले ब्राउन पे आ रहा है तो उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लो, अगर वाइट पे जा रहा है जाने दो इनको। तो बस फिर दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन, अब इसी में सरवाइव करना है। यू कांट, सो बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब जब आपकी हरकतें इस तरह की रहेंगी, अब आपके मुल्क में कोई इज्जत नहीं होगी, आपका मुल्क की अपनी भी कोई इज्जत नहीं होगी बाहर जाके, जब मुल्क जगह जगह जाके पैसे ही मांगेगा, nobody is going to respect you man. So I'm sad and I'm sorry that it's happening to you, मगर ये एक्सपेक्ट करना है कि गोरे को एग्जैक्टली पता हो कि आप कराची के कौन से वाले पार्ट के हो, वो नहीं करेगा, वो आपको ब्राउन कैटेगरी में ही रखेगा और उसके लिए आप ब्राउन ही हैं।
बाकी गल्फ पे जाएं तो वहाँ पे भी अरब, वही वाली बात ना, अब अरबी आपको चिकन टिक्का मसाला कह रहा है, इधर ये हम अरबियों का गोबर चाटने के लिए भी रेडी होते हैं, ठीक है ना। कुल्लुल मुस्लिमीन और ये वो हमारे मंजन नहीं ख़त्म होते, अरब आपको इस तरह जूती पे रखते हैं। इस पे वो काफ़ी वो AI वाली वीडियोस नहीं चल रही थी जिसमें कोई बांग्लादेशी होता है, वो कहता है वी आर मुस्लिम ब्रदर्स, तो फिर आगे से अरबी कहता है गो क्लीन माई टॉयलेट। दैट्स हाउ वी आर ट्रीटेड भाई। वही वाली बात, उनको पता है डिस्पोजेबल है, एक मरेगा 10 और आ जाएंगे। दैट्स वाई दे डोंट रिस्पेक्ट यू। एंड ये रिस्पेक्ट हमें इंडिविजुअली भी कमानी है, लेकिन एज अ नेशन भी हमें कमानी है, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं से कुछ ऐसा हो रहा है। सो विच इज़ वाई वी आर गेटिंग द ब्रंट ऑफ थिंग्स दैट वी डिडंट डू। हमने क्राइम नहीं किया, आप शरीफ आदमी हो गए, आप इज्जत से काम करते होगे वगैरह वगैरह, और मगर ये कि करे कोई भरे कोई, यही होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल अपने हिस्से का जो है ना दिया जलाए और सही काम करे, क्योंकि फिर स्टीरियोटाइप्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। आप गंदगी कर छोड़ के जाएंगे तो लोग, अब कल मैं स्ट्रैटफर्ड गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने पोपाई बोलता हूँ मैं हमेशा, पॉपाई से चिकन ली। अब मैं बैठा, जगह नहीं थी, एक टेबल थी, उसमें इतना गंद था उस टेबल पे कि लग रहा था कि मुर्गी खाई नहीं गई है, मुर्गी को फाड़ा गया है, ठीक है। अच्छा जी, वो चले गए, जो भी थे चले गए। कितना मुश्किल है वो, अब आपको वो बॉक्स में ही मिलता है ना, टिश्यू आपको हमेशा ज़्यादा ही देते हैं, तो अगर एक टिश्यू से मुंह पोंछ लिया, एक से हाथ पोंछ लिया, तो एक टिश्यू से भाई इस तरह समेट के डब्बे में डाल के रख के चले जाओ, डब्बे वाला उठा लेगा जो भी होगा, अगर खुद नहीं फेंक सकते डब्बा। तो मैंने फिर वहाँ पे ढूंढी कोई क्लीनर के, भाई कोई कोई इसको साफ तो करे। तो क्लीनर साहब आई, बांग्लादेशी, ठीक है। अब वो गीला कपड़ा लेकर आई, अब वो क्रम्स थे टेबल पे, क्रम्स ही क्रम्स थे। अब मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो उसको कलेक्ट करेंगी और जाके फेंकेंगी, उन्होंने ये क्रम्स यूं करके जमीन पे फेंक दिए। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मुसलमान औरत है, ठीक है, तुमने ये नहीं समझा, सीखा ही नहीं आज तक कि रिस्क की कितनी है, आपको वो टुकड़े टुकड़े की, दाने दाने की आपने रिस्पेक्ट करनी होती है। नीचे फेंक के चली गई, और वो क्लीनर आएगा, मेरा तो काम नहीं है, क्लीनर आएगा वो समेट लेगा, वो मॉप मार देगा। अरे भाई तेरा जो काम, अगर फेंकना ही था तो मैं भी फेंक सकता था, ठीक है ना भाई। अजीब, मैं तो उसकी शक्ल ही देखता रहा, वो यूं ही यूं करके यूं फेंक के चली गई, और इसके वो ले रही होगी, और 6-6 बच्चे पैदा करके यहाँ पे जो है ना एनरिच कर रही होगी इस कल्चर को। क्या लोग सीख कर आते हैं यार, गंवार। अब देखे ना, जो खा के गया, अगले 10 लोग देख रहे होंगे ना, जो गन करके गया, और फिर जो और जिसका काम सफाई करना वो और गन कर रही है। स्टेरियोटाइप्स ऐसे बनते हैं कि ये तो है ही गंवार, देखो ना, ये कौन सी क्लीनिंग है कि जो टेबल साफ करके नीचे जमीन गंदी कर दी, ये कौन सी क्लीनिंग है भाई। सो प्लीज ट्राई टू बी इन योर बेस्ट बिहेवियर हुएवर यू आर एंड वेर एवर यू आर। बट या कहीं ना कहीं तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम क्या करें, खाल हम उधेड़ नहीं सकते, या तो टीके लगा लो, ग्लूटाथायोन के टीके लगा लो, गोरे हो जाओ, साथ में कैंसर भी मिलेगा उसके। सो या मैन, इट्स नॉट अ ब्राउन मैन्स वर्ल्ड। कालों की तो अब इज्जत हो गई भाई दुनिया में, जब से पोर्न आया है, वरना काले भी खल्ली वल्ली थे, लेकिन जब से टोटे आए तो कालों की भी इज्जत हो गई है, ब्राउन की कहीं भी इज्जत, उस डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं इज्जत वैसे ही। और सो या वेयर लाइक द फॉरगॉटन वंस, वो एक बहुत बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हम, जो नजर नहीं आते। खैर, इट इज व्हाट इट इज। टेक केयर भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।